The first impression that comes to our mind about any college: tall buildings, big classrooms, large lobby areas, thick books, IT labs, assignments, class tests, and projects. Nothing besides that. Every hour, minute, second spent here help us carving and shaping our persona, cultivating innovative mindsets for the challenging world. Learning is a lifelong process. Sharing knowledge, inculcating values of life, spark the innovative horizons of mind. Fun and frolic is the nature of every nook and corner here. A daily dose of thrill we are sure to get here. A very good morning to one and all present today. I, Dr. Manasvi Maheshwari, Associate Professor, Media School, Delhi Metropolitan Education, Noida, welcomes you all to the Students Induction Program SIP 2021. I welcome our special guest, Mr. Aman Chopra from News 18 India. I also extend my warm welcome to Professor Ambrish Saxena, Dean DME Media School, and Professor Shushmita Bala, Head DME Media School, parents, students, and faculty members of DME Media School in this second guest session of SIP 2021. I also welcome all the viewers who are watching us live on Facebook. I would also like to take a moment and introduce Delhi Metropolitan Education to our viewers. DME is an A-grade premier educational institute affiliated to Guru Gobind Singh Indraprasth University, New Delhi, approved by Bar Council of India. The institute offers BBA, BA LLB, BBA LLB, and BA JMC programs. DME believes in imparting world-class education to its students while training them to develop and enhance their skills. This education and training enables them in taking up challenges of the industry and creating a space for themselves with their competence and vigor. DME Media School is one of the most promising media institutes in the country. It offers BA in journalism and mass communication. It is recognized as a school focused on growth of its faculty and students through academic and co-curricular activities. Major flagship events and initiatives of the school include BG Varghese Lecture Series, Peer-to-Peer FTP, International Film Festival SIFI, International Conference ICANN, Vritika Convention of Media Students, and newly added in the list is VIZ Vibrant India Series. The Students Induction Program 2021 has been designed with the aim of providing industry interface to our young aspiring journalists. We invite experts from the industry to share their experiences with the students and apprise them with the nuances of the media industry. Today's session will be presided over by Mr. Aman Chopra, anchor from News 18 India. Now I request Professor Ambrish Saxena, Dean DME Media School, to officially welcome the guest and introduce the topic to our attendees. Thank you, Manasvi. In this students induction program that we initiated last week, again, it's a matter of pride and privilege that Mr. Aman Chopra is with us in this session. And since we are trying to give that kind of exposure to the students wherein they got an idea as to, whatever media people are there who are running different media platforms, be it television or digital or newspaper. So that is how we have invited distinguished people from different sectors of media. We started with television, and today also an eminent personality of television, Mr. Aman Chopra, is with us. He has a long and cherished career in TV journalism, and particularly as an anchor. He's worked in so many channels. Till recently, he was working with Z, and now he is with the News 18 India. And since he has been an alumni of Guru Gobind Singh Indraprastha University, so he has that kind of background, that kind of understanding
understanding also as to how this knowledge and the training which is imparted by any educational institution under the setup of IP University in this BAJMC program, to what extent this is vital and how it contributes towards the grooming and the growth of a student. And a particular topic that we have decided for today, keeping in view the expertise that Mr. Aman Chopra has, since he has been not only handling the news bulletins or the prime time shows, but he has also been doing in a big way the debate show, and at present also he is handling a debate show. So we would request him to throw more light as to how these TV shows, TV debate shows are considered important as far as the opinion making of the viewers is concerned, and what is the significance of these kind of shows in particular, and overall the way the TV journalism is moving ahead, and number of changes we have been witnessing in television journalism over the years. And since the time this COVID-19 has struck, further we have noticed the changes which are happening and how these changes are making an impact on the contemporary journalism, and what could be the more important thing with any budding journalist who might be joining the industry at this time or in another 2 to 3 years, what kind of traits they need to have to excel in TV journalism. So I would expect that this session will really be fruitful because Mr. Aman Chopra's background and his experience will be very vital in making the things simple and understandable to the students who are joining this journalism and mass communication program in 2021. And since the things have started opening up, we have also started doing certain sessions, certain classes in the offline mode, in the physical mode, and today also we are in a way trying to do it in the hybrid mode, wherein we all are online, but the students are sitting in our studio 62 in the physical space. So we are looking forward, I'm looking forward to having a very engaging session ahead. Thank you. Thank you, sir. We are delighted to have Mr. Aman Chopra with us today. Aman Chopra is one of the finest television journalists and anchors in India. He has over 20 years of experience in print, PR, and electronic media. He started his career with print media, and in electronic media, he has been associated with Rajya Sabha TV, ABP News, Zee News, and News 18 India. He was associated with Zee News for 4 years, and his popular show at Zee was Tal Thopke. While working with ABP News, he has hosted political debates, Aaj Ki Tareekh, Ghanti Bajao, Kaun Banega Mukhyamantri show. During elections, he has also anchored popular show Rath Yatra show. He is popular for his debating skills and anchoring. Sir will address the students on the topic television debate shows as an instrument of opinion building. Over to you, Aman ji. बहुत बहुत शुक्रिया सक्सेना सर। पहले तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सही हाथों में हैं, मैं ये विश्वास और भरोसे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद आईपी यूनिवर्सिटी का पास आउट हूँ और अमरीश सक्सेना सर ही मेरे मेंटोर थे, हम लोगों को गाइड किया था उन्होंने। तो जितने भी छात्र, जितने भी स्टूडेंट्स इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, तो एक चीज श्योर है कि वो लोग सही हाथों में हैं, नंबर 1। नंबर 2, डीएमई के साथ मेरी एसोसिएशन बहुत पुरानी है। डीएमई के साथ मैं शुरुआत से काफी समय से इनफैक्ट जुड़ा रहा हूँ। जितने भी छात्र आते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं, उनके साथ मेरी इंटरेक्शन रेगुलर रहती है, मेरी कोशिश भी रहती है। जहां तक टॉपिक की बात है, पहले तो ये जो जिस तरीके से हम आज जुड़ रहे हैं, ये पत्रकारिता का नया दौर है। मतलब अब चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं, अब डिजिटल हो रहे हैं हम लोग। पहले हम लोगों को ये रहता था कि टीवी जर्नलिज्म, ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म, या इसके अलावा प्रिंट, पीआर, रेडियो, लेकिन अब चीजें बहुत ज्यादा, अब सब कुछ डिजिटल हो गया है। मतलब सबसे बड़ी चीज तो ये होती है कि जब हमारे लिए एक चैलेंज होता है कि हमको अब सब कुछ डिजिटल के तरीके से ही हम उसको पेश करना होता है, क्योंकि अब कोई भी कोविड का असर जर्नलिज्म पर बहुत ज्यादा पड़ा है, खासकर ब्रॉडकास्ट जर्नल। जितने भी लोग इस वक्त आप अब जर्नलिज्म में आने की सोच रहे हैं, आप लोगों को ना सोशल मीडिया को बहुत ज्यादा क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। मैं कुछ टिप्स दूंगा आपको, देखिए बाकी तो सब आपको पता ही है, बट मैं आपको वो टिप्स दूंगा तो शायद हो सकता है आपके काम आए। सोशल मीडिया को मतलब घोंट कर पी जाइए। शुरुआत में ट्विटर, इंस्टा,
फेसबुक, यूट्यूब, कुछ भी मत छोड़िए। सोशल मीडिया आने वाला मीडिया है, सबसे बड़ा मीडियम फॉर मीडिया, सोशल मीडिया। इसमें सबसे ऊपर मेरी नजर में आज की तारीख में जो ओपिनियन मेकर, जिसमें आज हम बात भी करेंगे कि डिबेट्स जो हैं वो ओपिनियन मेकिंग में काम आती है। मेरी नजर में सोशल मीडिया से बड़ा ओपिनियन मेकर कोई नहीं है आज की तारीख में। सरकारें चल रही हैं सोशल मीडिया से, सरकारें बन रही हैं, सरकारें गिर रही हैं, पार्टियां बन रही हैं, गठबंधन हो रहे हैं, सब कुछ सोशल मीडिया पर हो रहा है। तो जितने भी लोग इस वक्त जर्नलिज्म में आ रहे हैं या आना चाहते हैं, सोशल मीडिया घोट कर पी जाइए। हर जगह प्रोफाइल होनी चाहिए, हर जगह आपका सोशल मीडिया मतलब इतना स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि जब आप 3 साल पढ़ने के बाद, जैसे मेरे से क्या गलती हुई थी वो आप लोगों से ना हुई थी, मैं इसलिए आपको टिप्स दे रहा हूँ। हम लोगों के टाइम पे इतनी अवेकनिंग नहीं थी, हम लोग किताबी ज्ञान में ज्यादा थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए, किताबी ज्ञान होना चाहिए, बहुत जरूरी है। लेकिन प्रैक्टिकली ये 3 साल जो अब आपके होंगे उसमें ये 3 साल, ये तो मैं सक्सेना सर को भी कहूंगा, जितने भी लोग डीएमए में भी देख रहे हैं, एक सोशल मीडिया का सेशन हमेशा होना चाहिए जिसमें आप रेगुलरली सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, डिजिटली कैसे आप अपग्रेड रहें। हर टाइम ट्विटर पर प्रोफाइल बना लीजिए। जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट्स इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, ट्विटर पर प्रोफाइल बना लीजिए। ट्विटर सिर्फ इसलिए नहीं होता क्योंकि बेसिकली ट्विटर में आप खबरों से अपडेट रहते हैं। आप रोज सुबह वो ट्रेडिशनल तरीका जो अखबार पढ़ने का है वो भी आप, वो सिर्फ एडिट पेज जो एडिटोरियल है, सिर्फ एडिटोरियल पढ़े जा रहे हैं आप। मैं खुद सिर्फ एडिटोरियल पढ़ रहा हूँ। खबरों के लिए अब सोशल मीडिया हो गया है। तो ट्विटर पर अकाउंट बना लीजिए, इंस्टा पर तो होगा ही होगा भाई। इंस्टा पे बल्कि मेरा नहीं था, मैं अभी अभी कोशिश कर रहा हूँ, इंस्टा पे मेरा नहीं था, लेकिन ट्विटर नंबर 1 सबसे पहले पकड़ लीजिए। ट्विटर को 3 साल सोशल मीडिया को, मैं दोबारा से कह रहा हूँ, अकाउंट बना लीजिए, नंबर 1। नंबर 2, जर्नलिज्म मतलब जब हम बात करते हैं तो हम लोग हमेशा एक चीज बताई जाती है, द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। और इसमें वाद विवाद, संवाद, सहमति असहमति, विरोध अविरोध, मतलब जब भी हम बात करते हैं तो हो सकता है मैं कुछ कह रहा हूं, आप लोग उसमें से कई लोग होंगे जो इससे शायद सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो वही खूबसूरती होती है लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की, और वही खूबसूरती होती है डिबेट की। वाद विवाद, संवाद, विरोध अवरोध, सहमति असहमति, मतलब जूतम पैजार नहीं। अब कल डिबेट्स में थोड़ा बहुत वो भी हो गया, उसको हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हाँ, वाद विवाद, संवाद, विरोध अवरोध, सहमति असहमति, जिस तरह ये लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हम संसद सत्र देखते हैं, आज से 29 है, आज से संसद सत्र शुरू हो रहा है, पार्लियामेंट सेशन। 11 बजे किसान वापसी बिल पेश होगा। तो जिस तरह से डेमोक्रेसी में ये सारी चीजें जरूरी हैं, उसी लिए जर्नलिज्म में डिबेट जरूरी है। हम लोग जब किसी से पूछते हैं कि आप लोग न्यूज क्यों देखते हैं, जितने भी लोग इस वक्त जितने स्टूडेंट्स हैं जो जर्नलिज्म में आ रहे हैं, अगर मैं उनसे पूछूं आप जितने भी लोग हैं, आप लोग डिबेट क्यों, मतलब डिबेट क्या, आप चैनल क्यों देखते हैं, तो सबसे ज्यादा, मतलब एक स्टडी भी हुई थी, वो अमरीश सर को पता होगी, 67% लोगों ने कहा कि हम इसलिए देखते हैं कि ताकि हमारी तर्क शक्ति मजबूत हो। 67% लोगों ने, मतलब कह रहे हैं न्यूज तो हमको कहीं से भी मिल जाती है, सोशल मीडिया से मिल जाती है, हमें न्यूज़पेपर से मिल जाएगी, हमें और तरीके से मिल जाएगी। तो फिर टीवी में ऐसा क्या खास है, हम क्यों टीवी जर्नलिज्म, ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म हम क्यों देखते हैं? वो हम इसलिए देखते हैं ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म, इससे हमारी लॉजिकल रीजनिंग, हमारी तर्क शक्ति, हमारे पॉइंट्स, हमें वो मजबूत होती है, हम सोसाइटी में बैठ पाए। मतलब ये 67% लोगों का कहना था कि हम सोसाइटी में बैठ पाए। भाई कल को बात हो जाती है किसान बिल की, कल को बात होती है पार्लियामेंट सेशन की, कल को बात होती है यूपी चुनावों की, किसी भी मुद्दे पर बात होती है और हमें पता ही नहीं है, तो सोसाइटी में प्रेजेंस और सोसाइटी में बात करने के लिए, 4 लोगों में बैठने के लिए डिबेट देखी जाती है। अब इसमें क्या सबसे ज्यादा जरूरी होता है, जब हम कोई भी डिबेट का टॉपिक तय करते हैं, जैसे आज आज रात, जैसे मैं अगर अभी सोच रहा हूं तो मेरी नजर में आज पार्लियामेंट का सेशन सबसे बड़ा है और आज किसान वापसी बिल पेश होना है संसद के अंदर। तो हम लोग ये देखते हैं कि इसमें वाद विवाद, संवाद, विरोध अवरोध, सहमति असहमति सब होना चाहिए। तो इसमें वो इसलिए क्योंकि दोनों पक्षों को सुनना जरूरी होता है, तो जो सामने बैठता है वो राय बना पाता है अपनी। तो इसमें जो किसान जो बिल के साथ हैं वो किसान, जो बिल के विरोध में हैं वो किसान,
जो सरकार है पार्टी उसका एक पक्ष, जो विरोध वाली पार्टी है उसका एक पक्ष, और एक न्यूट्रल पत्रकार या न्यूट्रल कोई किसान कह लीजिए कोई भी, तो वो 5 पक्ष आपको सुनने को मिलेंगे एक डिबेट में। आप एक बुक पढ़ेंगे, आपको पढ़ने में 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे, लेकिन आप एक 40 मिनट की डिबेट देखेंगे, उसमें आपको कम से कम 10 किताबों का ज्ञान मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर जो लोग आए होंगे वो आपको ए टू जी, मतलब जैसे अब मैं किसान बिल के क्या फायदे, ये अगर किसी को जानना है तो जाएगा, गूगल करेगा, पढ़ेगा इधर उधर। आप एक डिबेट देखेंगे, आज की कोई भी डिबेट देख लेगा, आज ही आपको पता लगेगा किसान बिल के फायदे क्या हैं। ये ऑप्शनल है, ये चाहे तो मंडियों पर जो कब्जा है वो खत्म होगा, किसानों को आजादी मिलेगी, मतलब आपको 10 पॉइंट वो पता लगेंगे। किसान बिल के नुकसान क्या है, 10 पॉइंट दूसरा शख्स आके बताएगा। क्या किसान बिल पर पॉलिटिक्स हो रही है, कांग्रेस आके बताएगी। क्या किसान बिल पर पॉलिटिक्स नहीं हो रही है, बीजेपी आके बताएगी। क्या बिल चुनावों की वजह से वापस लिए जा रहे हैं, ये तो कोई भी सवाल अच्छा होता ये है, जब हम एज एन एंकर, हम लोगों की क्या ड्यूटी होती है, जो आप लोग हैं, जो अब जर्नलिज्म में आ रहे हैं, अपने कोई सवाल नहीं होने चाहिए कभी। मतलब कि मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारे कोई सवाल नहीं होते हैं, हमारे वो सवाल होते हैं जो मेरे को लगता है कि मासेस पूछना चाहती है, तभी तो मेरा डिबेट देखा जाएगा ना। मतलब मैं अगर अपने मन से आके पूछूंगा कि मेरे को लगता है कि ये नहीं, हम लोग वो सवाल ज्यादा पूछते हैं जो मासेस के सवाल होते हैं। अब मासेस का सवाल ये है कि रोड क्यों ब्लॉक कर रखा है भाई, मासेस का सवाल है कि रोज गाजीपुर बॉर्डर बंद कर रखा है, हम लोगों को इतना इश्यूज होते हैं, कभी एम्बुलेंस अटकती है तो कभी क्या, एक साल। मासेस का सवाल ये है कि मेरे को स्टूडेंट्स का ग्रुप का एक मैसेज आया था कि उनका कोई एग्जाम होना था कोविड में, तो उनको टालना था, तो उन्होंने बोला कि अमन जी हम भी जाकर, हम लोग करीबन 250-300 के करीब छात्र हैं, जाके बैठ जाते हैं हम आउटर रिंग रोड पर, तो क्या हमारा भी एग्जाम वापस हो जाएगा। तो ये सवाल मैं पूछूंगा ऑन एयर। हम लोगों का काम जर्नलिज्म में ये काम होना चाहिए कि हम मासेस के सवाल पूछते हैं तो ही लोग हमको देखेंगे, वरना तो लोग ही नहीं देखेंगे ना। मतलब हम अपनी मन मर्जी के सवाल पूछते रहेंगे तो लोग ही नहीं देखेंगे। लोगों को दिखाने के लिए, लोगों का इंटरेस्ट आने के लिए हम मासेस के सवाल पूछते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हर तरह का पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी होता है डिबेट में, डेमोक्रेसी में। डिबेट डेमोक्रेसी में फोर्थ पिलर मीडिया, मीडिया में डिबेट फोर्थ पिलर आप कह लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट पिलर होता है, क्योंकि उसमें सारी पक्ष होते हैं। तो जब आप कोई भी डिबेट शो देखते हैं, मैं क्या बात कर सकता हूँ स्टूडेंट से, मतलब कौन सा डिबेट शो आप लोग देखते हैं या नहीं पसंद, नहीं देखने का मन करता? सर डिबेट शो इसलिए देखते हैं क्योंकि इंटरेस्टिंग होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं उसमें, इसलिए। अच्छा, लड़ाई झगड़े के लिए देखते हैं, एंटरटेनमेंट वैल्यू होता है उसमें। और कुछ, और कोई कौन सा देखते हैं डिबेट शो, कौन सा पसंद है? सर जिसमें लड़ाई हो रही हो। ये क्या बात हुई? नहीं, है बहुत बड़ा फैक्टर है सर, मैं तभी तो कह रहा हूँ। और कोई दंगल एंड अंश पांडे बोल रहे हैं दंगल एंड ताल ठोक के देखते हैं रेगुलरली। निखिल कह रहे हैं कि सारे शोज जो है वो स्क्रिप्टेड होते हैं, डिबेट सारी स्क्रिप्टेड होती हैं। नहीं, अच्छा इसमें क्या होता है, डिबेट शो कभी भी स्क्रिप्ट हो ही नहीं सकता ना, उसमें तो वो आके गेस्ट क्या बोल रहा है आपको क्या पता। डिबेट शो, हाउ कैन डिबेट शो स्क्रिप्टेड वन, मतलब उसमें तो जो पैनलिस्ट आकर क्या बोल रहा है वो तो आप तय कर नहीं सकते हैं। शोज स्क्रिप्टिंग होती है, स्क्रिप्टेड तो होंगे, स्क्रिप्ट तो लिखनी सिखाई जाती है। शोज जो होते हैं उसमें पैकेजिंग होती है, स्क्रिप्टिंग होती है, वॉइस ओवर्स होते हैं, तो वो स्क्रिप्टेड होता है। डिबेट शो का स्क्रिप्टेड नहीं, एक रनडाउन जरूर होता है। मतलब एक रनडाउन होगा, तो जब आप शुरू करेंगे तो किस तरह से शुरू करेंगे, उसको डिबेट को किस तरफ लेके जाना है, क्लोजिंग किस तरह से करनी है, तो स्क्रिप्टिंग होती है। लेकिन पहले से तय हो नहीं सकता ना, उसमें तो कौन आकर क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, वो डिपेंड करता है। और टीआरपी के आयुषी से कहना चाहती हैं कि नॉलेज मिलती है और दूसरे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू पता चलता है डिबेट से। सबसे बड़ी चीज जो मैंने बार बार कही, सोसाइटी में जब हम बैठते हैं 4 लोगों के बीच, जब आपको बोलना है किसान बिल पर बात करनी है, तो आप क्या बात करेंगे, आपको पता ही नहीं होगा। आपको किसान बिल के 10 फायदे 10 नुकसान पता लगेंगे, सोसाइटी में बैठकर आप बात कर पाएंगे। वो होता है ना कि आप फ्लॉन्ट कर पाता है, मुझे पता है, सब कुछ पता है, वो डिबेट देख देख कर ही पता लगता है, इतना अखबार पढ़कर नहीं पता लगेगा। क्योंकि हम लोगों को जब डिबेट करने जाना होता है तो मेरे को कम से कम 5 घंटे की रिसर्च करनी होती है। मतलब ये मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, ये हम लोगों को, जैसे अभी मेरे को आज डिबेट करनी है 5 बजे की 8 बजे की, तो अभी मैं सुबह से लगूंगा। अभी मैं यहाँ पर आपके साथ हूँ, ये खत्म होते ही मेरे को अपनी डिबेट का टॉपिक तय करना होगा, फिर गेस्ट लाइन अप करने होते हैं एज एन एंकर। मतलब हम लोग जरूर एग्जीक्यूटिव एडिटर वगैरह सब बन जाते हैं, लेकिन काम वही रहता है।
मतलब जो हम 10 साल पहले करते थे वही आज भी कर रहे हैं। अभी जैसे अभी हम तय करेंगे टॉपिक, फिर उसके बाद सारे गेस्ट से बात करनी होगी, फिर उसके बाद अपना रनडाउन तय करना होगा, फिर अपने प्रोड्यूसर को ब्रीफ करना होगा, फिर उसके बाद रिसर्च करनी होती है। बिना रिसर्च के एंकर कभी डिबेट नहीं कर सकता, क्योंकि कौन आकर क्या बोल देगा डिबेट में आपको सब पता होना चाहिए। मतलब आपको सब A to Z पता होना चाहिए कि अगर आज बात की जा रही है किसान बिल का, कांग्रेस विरोध कर रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसी कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में 3 बिल्स की बात करी थी। तो जब आप कांग्रेस पार्टी से ये पूछेंगे कि ये तो आप चाहते थे 3 बिल जिसका आप विरोध कर रहे हैं, ये अपने मैनिफेस्टो में आपने 2019 के मैनिफेस्टो में या उससे पहले मैनिफेस्टो में यही बात आपने डाली थी कि आप ये लाएंगे, कानून लागू करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। जब हम रिसर्च करते हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि जिस बिलों का कांग्रेस विरोध कर रही है, पंजाब में जब कांग्रेस की सरकार है तो वहीं पर ये चीज हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। आपको ये पता होना चाहिए कि केरल में जहां से राहुल गांधी सांसद है, वहां पे मंडियां नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि मंडियां खत्म की जा रही हैं। तो ये आप जैसे हम लोगों को तैयारी जब करनी होती है तो 5-5, 6-6 घंटे हम लोग तैयारी करते हैं, 7-7 घंटे तैयारी करते हैं, अक्रॉस मीडियम तैयारी करते हैं, वर्चुअल, अखबार, किताबें, लोगों से बात करके, एक्सपर्ट से बात करते हैं हम, और उन एक्सपर्ट से बात करके हम नोट्स बनाते हैं। क्योंकि होता ये है कि आप लोग जब हमको देख रहे हैं, आपको गेस्ट क्या आकर बोल दे आपको कुछ नहीं पता होने है, सारी चीजों का जवाब आपके पास होना चाहिए, A to Z आप लोगों को पता होना चाहिए। तो वो हमारा काम होता है। अच्छा, और किस किस को मारधाड़ की वजह से डिबेट अच्छी लगती है? ये स्टूडियो में कोई कुछ कहना चाहता है? स्टूडेंट अनम्यूट कर दे उन्हें। सर एक्चुअली जब भी कोई डिबेट स्टार्ट होती है तो टॉपिक कुछ और होता है, और एट द एंड एक प्रमोशनल डिबेट बन के रह जाती है किसी पार्टी के लिए, या फिर रिलीजनल डिबेट बन जाती है वो। तो आपने बोला कि वो पहले से सेट होता है कि कहाँ तक लेके जानी है, तो क्या यही पॉइंट होता है हर डिबेट का कि उसको एक पार्टी की प्रमोशनल डिबेट बना दे? नहीं, असल में आपका नाम क्या है? शिक्षा। शिक्षा। देखिए, हमेशा आप डिबेट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए देखते हैं, खबर के लिए नहीं देखते। अगर मैं इसमें, अच्छा चलिए मैं आज आपको एक एग्जाम्पल देने की कोशिश करूंगा, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। एक बहुत बड़ी डिबेट रहती है मीडिया में, निष्पक्षता और तटस्थता। आप लोग कहते हैं निष्पक्ष होना चाहिए, भी पत्रकार को न्यूट्रल होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, आप लोग बायस नहीं हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी डिबेट रहती है। मेरी नजर में, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, एक जर्नलिस्ट क्या है, एंकर का रोल एक एम्पायर की तरह होता है मैच में। जब बॉलर ने गेंद डाली और बल्लेबाज आउट हुआ, तो एज एन एंकर, एज एन एम्पायर मैंने आउट दिया, लेकिन मैंने गेंदबाज की मदद भी तो करी, मैं न्यूट्रल तो नहीं रहा। मुझे अगर कुछ गलत होता दिखेगा तो एज एन एंकर, एज ए डिबेटर, मुझे उस पॉइंट को टो करना पड़ेगा। मतलब एज एन एम्पायर, जब आपने आउट दिया तो आपने गेंदबाज की मदद करी, बल्लेबाज को आउट देके, है ना? तो आप, इसमें 2 चीजें होती है, तटस्थता और निष्पक्षता। आप निष्पक्ष हैं, सही के साथ हैं, लेकिन आप तटस्थ नहीं हैं, क्योंकि आपने आउट देकर गेंदबाज की मदद कर दी ना। उसी तरह से जब हम डिबेट करते हैं तो डिबेट के अंदर यू कैन नॉट बी न्यूट्रल, you have to take a side, the right side, the country side, the right side of the debate. उसी को लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाना होता है। अगर मैं, फर्ज करिए शिक्षा, मैं डिबेट कर रहा हूं किसान बिल पर, और एंड तक मुझे ही नहीं पता किसान बिल सही है नहीं है, तो फिर क्या फायदा? मुझे कम से कम पता होना चाहिए कि हाँ, ये किसान बिल पक्ष में है या नहीं है। मैं आया, मैंने आप बोलिए आपको क्या लगता है, लेकिन मुझे ही नहीं जब पता होगा कि फार्म बिल या CAA या 370 या NRC ये फेवर में है या नहीं है, तो फिर मैं क्या आपको बताऊंगा? तो इसलिए फिक्स कुछ नहीं होता है डिबेट में, कुछ भी तय नहीं होता। बट हाँ, जब आप सबको मौका देते हैं और उसके बाद एक लाइन पे आप उसको इसलिए लेकर जाते हैं क्योंकि उसमें आपका पक्ष आना जरूरी होता है। और कोई सवाल? आपने जो बात कही सर, यहाँ पे इशिका ने भी वही लिखा है कि हम कोई भी आर्ग्यूमेंट करें तो उसका कोई बेसिक लॉजिक होना चाहिए, एक बैकग्राउंड होना चाहिए। तो ये एक बात इशिका ने चैट में लिखी है। यहाँ पे स्टूडेंट कुछ पूछना चाहते हैं, अनम्यूट कर दें उनको। हेलो Yes. सर, माई सेल्फ विनायक यादव। जी विनायक जी।
सर मेरा डाउट है कि कभी कभी जो बहुत ज्यादा क्वालिफाइड होते हैं वो भी अपना पेशेंस खो देते हैं, तो ये क्या उनकी ईगो भड़क जाती है, क्या होता है? यार जब 130 करोड़ लोग देख रहे हैं, जैसे आपको मेरे को इस टाइम देख रहे हैं, डिबेट को 130 करोड़ लोग, 125 करोड़, और इसके अलावा पूरी दुनिया में देखा जाता है कोई भी चैनल, तो अगर ऑन एयर छीछा लेदर होगी, अब छीछा लेदर मतलब एक हिंदी का शब्द है, ऑन एयर अगर कपड़े उतारे जाएंगे, ऑन एयर अगर उसकी बेइज्जती की जाएगी, या ऑन एयर उसका पॉइंट कमजोर पड़ेगा, तो वो इरिटेशन तो स्वाभाविक है यार, मतलब वो तो ऑब्वियसली वो तो होता है, बट वो सब ऑन एयर होता है यार। डिबेट खत्म होने के बाद सब दोस्त होते हैं। कई बार ये हम लोगों से भी पूछा जाता है कि डिबेट में जिस तरह की मारधाड़ होती है, वो डिबेट डिबेट खत्म होती है, कैमरा ऑफ होते, सब दोस्त होते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं यार। जैसे एज एन एंकर मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो कोई स्पोक्स पर्सन आ रहा है, वो पार्टी का काम कर रहा है, वो दूसरा स्पोक्स पर्सन वो अपनी पार्टी का काम कर रहा है, तो वो ऑन एयर दे आर परफॉर्मिंग, दे आर डूइंग देयर ड्यूटी टुवर्ड्स देयर पार्टी, एंड आफ्टर द डिबेट इट्स ऑल सेटल्ड। वो कुछ भी नहीं होता। ईगो ईगो तो यार सबके अंदर होती है यार, आपके अंदर भी कम होगी क्या? सबके अंदर होती है। और कोई सवाल? हेलो सर, दिस इज आकृष्ट गोयल। जी आकृष्ट। सर मेरा सवाल था कि आपने बहुत बहुत अच्छी बात बोली कि बाद में सब वो दोस्त हो जाते हैं। मेरे को एक किस्सा याद आया, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी भी बाद में नरसिम्हा राव जी के दोस्त ही थे, और वो ऑन लोकसभा वो उनसे काफ़ी झगड़ा भी करते थे, है ना? जी तो सर ये तो सच बात है कि ऑन एयर कोई जब भी आप किसी बातचीत करते हो तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, हम्म। है ना? तो सर आप झेलते कैसे हो उन्हें बेसिकली? नहीं, निष्कर्ष निकलना चाहिए यार। बिना जब आप निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे तो एज एन एंकर यू आर फेल। भाई आप तो, मैं अगर आज डिबेट करता हूँ, मैं कोई भी टॉपिक सोच के जाता हूँ, तो मैं वो सोच के जाता हूँ कि इज दिस फॉर द कंट्री और नॉट, इट इज फॉर द नेशन और नॉट, इफ इट इज फॉर द नेशन आई एम विद द टॉपिक, इफ इट इज नॉट फॉर द नेशन आई एम नॉट विद द टॉपिक। तो लॉजिकल कंक्लूजन तो निकालना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर यू आर फेल एज एन एंकर, मेरे को ऐसा लगता है। डिबेट खत्म होने के बाद लोगों को पता लग जाना चाहिए, नहीं भैया ये इसका पॉइंट ऑफ व्यू ये है। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, मेरे ख्याल से सबका कोई पॉइंट ऑफ व्यू कम से कम होगा। मैं किसी भी टॉपिक पर अगर आपसे पूछ लूं, मैं अगर फार्म बिल पर पूछ लूं या 370 पर पूछ लूं, कोई ना कोई टॉपिक, मतलब कोई ना कोई आपका एक टेक होगा, पर्सनल टेक होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आस्क फॉर 370, आप में से पता है 370 क्या है? सबको किसी को आइडिया है व्हाट इज 370? हैंड रेज करके बता सकते हो कोई? सब अगर सुना है 370, किस किसने सुना है? Yeah, there are many students in the. हाँ, काफी लोगों ने हाथ रेज किया। हाँ, तो अब आप में से कई लोगों की राय होगी कि हाँ ये 370 होना चाहिए या 370 नहीं होना चाहिए। एज एन एंकर जब हम, आपने कहा ना कि कोई कंक्लूजन नहीं निकलता, हम लोगों का एज एन एम्पायर ये रोल होता है कि हम गलत, अगर वो आउट हो रहा है बल्लेबाज तो हम उसको आउट देंगे। अगर वो 370 इज फॉर द नेशन तो हमको बताना पड़ेगा यस इट इज फॉर द नेशन, इट इज नेसेसरी, वो बहुत जरूरी है, तभी तो आप देखेंगे ना यार। मतलब मैं अगर डिबेट में आके मुझे ही नहीं पता होगा 370 जरूरी है या नहीं है, तो क्या मेरी डिबेट कोई क्यों देखेगा? इसलिए एज एन एंकर कंक्लूजन बहुत जरूरी होता है, डिबेट की इनडेप्थ रिसर्च बहुत जरूरी होती है। हम लोग आज की तारीख में भी 4-4, 5-5 घंटे एक एक दिन बैठकर पढ़ते हैं। वो इसलिए क्योंकि ऑन एयर एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि जो हम बोल रहे हैं वो सही होगा, और आप जब सुनेंगे तो आप भी जाके किसी सोसाइटी में अपने पेरेंट्स या फिर कहीं बात करेंगे तो आप कह पाएंगे कि नहीं ये जो है ये इसलिए 370 जरूरी है या फार्म बिल जरूरी है। आप में से कितने लोगों को लगता है फार्म बिल जो वापस ले गए सही थे? बस एक आखिरी सवाल है सक्सेना सर, मुझे पता है टाइम हो गया, एक आखिरी सवाल, फार्म बिल जो लिए गए वापस सही थे गलत थे? सर मुझे लगता है फार्म बिल थोड़ा सही था, थोड़ा गलत था। लाइक कुछ जगहों पे गवर्नमेंट सही थी, कुछ जगह पे किसान सही थे। वापस लेना सही था? वापस लेना सही नहीं था, क्योंकि अच्छा, इससे ऑपोजिशन को बोलने का मौका मिल गया। एज एन एंकर जब आप मेरी तरह डिबेट करेंगे तो फिर तो आप ये मान के चलेंगे ना कि सरकार ने गलत किया, तो इट्स एंटी गवर्नमेंट डिबेट। बट अब आरोप लगेगा कि आप सरकार के साथ है, लेकिन यहाँ तो आप सरकार के साथ नहीं है, तो यू हैव टू बी विद द इशू, यू हैव टू बी बायस्ड टुवर्ड्स कंट्री, टुवर्ड्स नेशन, दैट्स इट, दैट्स द फॉर्मूला बेसिकली। मतलब कोई भी अगर आपको कहता है ना कि आप सरकार के भोपू है या गोदी या कुछ भी इस तरह की चीजें होती हैं, मान के चलिए मुद्दा कोई भी हो, you need to be biased, आपको biased होना पड़ेगा for the nation towards the country, that's it, that's a formula which I follow personally। और कोई सवाल?
सर एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि बिल्कुल, ये बिल्कुल। स्टूडेंट्स हमसे बहुत ज्यादा पूछते हैं, और ये हर जब भी कोई गेस्ट आता है उनका ये कॉमन सवाल होता है कि हर चैनल पे जितने भी एंकर्स हैं, आप हैं या कोई और भी जो डिबेट कर रहे होते हैं, आपने कहा कि सब अपना व्यू पॉइंट देते हैं और देना चाहिए, तो सबके व्यू पॉइंट वेरी करते हैं। तो स्टूडेंट्स का एक बेसिक सवाल होता है कि हम किसको सही माने, किस व्यू पॉइंट को कहें कि ये फॉर द नेशन है, बिकॉज एवरी जर्नलिस्ट वो अपने आप को ऐसे ही पोर्ट्रे करते हैं ना कि हम तो भले की बात कर रहे हैं। तो बच्चों का एक सवाल बेसिक सा होता है कि हम किसको कहें कि ये फॉर द नेशन है और ये नहीं, और हम किसको सही समझें। दिल की सुनो यार, सुनो सबकी, करो मन की। भाई आप 10 लोगों को सुनेंगे, 10 में से आपको लगेगा कि किसी का पॉइंट स्ट्रांग है, अगर मेरा कमजोर लगता है तो मेरी बात मानिए। भाई आप कैसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाते हैं? पॉइंट ऑफ व्यू बनाते हैं, हम 10 लोगों को सुनते हैं, 10 में से अगर आपको लगता है इसकी बात सही है, 10 में से 6, कभी कभी 10 में से जो 9 कह रहे हैं उसकी बात पर भरोसा नहीं होता, जो 1 कह रहा था उसकी बात पर भरोसा होता है आपको। तो आप सुनो सबकी, करो मन की, भाई दिल की सुनो, आपको लगता है गलत है तो गलत, सही तो सही, बात खत्म। कोई हम आपको थोप तो नहीं रहे कि ये मानो नहीं, हम तो अपनी बात कर रहे हैं। 10 लोग अगर बात कर रहे हैं, सुनो सबकी, करो मन की, दिल की सुनो, जो समझ में आता है वो करो। पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा ही बनता है यार, बहुत जरूरी होता है पॉइंट ऑफ व्यू होना, हर चीज के बारे में पता होना बहुत जरूरी होता है, तभी आप बात कर पाते हैं। एक और क्वेश्चन है, मैं पढ़ पा रहा हूँ, डिजिटल एज डू यू फील डिजिटल प्लेटफॉर्म, वो मैंने बताया डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत जरूरी है आज की तारीख में, सबसे ज्यादा डिजिटल नंबर 1 मेरी नजर में सबसे ऊपर है डिजिटल प्लेटफॉर्म। आने वाला एरा डिजिटल है, टीवी जर्नलिज्म, ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म सब मर्ज होंगे। ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म, टीवी जर्नलिज्म ऐसा नहीं है खत्म होगा, लेकिन सब वर्चुअली मर्ज होंगे। अब हमारे यूट्यूब बुलेटिन अलग जाते हैं, डिजिटल बुलेटिन अलग जाते हैं, फेसबुक लाइव्स अलग जाते हैं, ट्विटर लाइव्स अलग जाते हैं, सोशल मीडिया पे लाइव्स अलग जाते हैं और बुलेटिन अलग जाते हैं। तो पैरेलली अब दोनों चीजें साथ चलती हैं। स्टूडियो में भी कुछ स्टूडेंट्स मुझे जो लग रहा है कि कुछ पूछना चाहते हैं। सर मेरा आपसे ये सवाल है कि जब भी कोई डिबेट शो होता है तो डिबेट किसी एक साइड एंड होती है, बहुत बार नहीं भी होती, पर अगर आपके मुंह से कोई निकली हुई चीज़ किसी पॉलिटिकल पार्टी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करती है तो सर बहुत सारे थ्रेड्स भी आते होंगे और उनके सपोर्टर से हेट भी आता होगा, तो सर उससे कैसे डील किया जाए? यार वो तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, मतलब वो तो जर्नलिज्म के साथ आता ही आता है यार, मतलब वो नहीं होगा तो वो तो बहुत जरूरी है। इधर यू क्विट जर्नलिज्म और यू फेस ऑल दीज थिंग्स, मतलब ये तो होता ही होता है। अब उसके डर से हम सवाल पूछना नहीं छोड़ देते, मतलब हमको लगता है कि पूछना है, क्योंकि अगर हमने वो पूछना छोड़ दिया तो हमको लोग देखना छोड़ देंगे। भाई आपके कोई मन का सवाल है जो आप पूछ नहीं सकते हैं और मैंने पूछ दिया, तो आप तो चिपक जाएंगे मेरी डिबेट से, कभी नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि मैं आपके वाले सवाल पूछूं। बेशक उससे थ्रेट से लेकर चीजें होती हैं, वो सब होता है, वो होता है, वो सब बहुत जरूरी है, वो होता भी है, वो कभी ऑपोजिशन से, कभी सत्ता पक्ष से, विपक्ष से होता है, तो वो होता है, तो उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन हम सवाल पूछना नहीं छोड़ सकते ना यार, वो तो पूछना ही है। हाँ जी। सर मैं किसी पार्टी का वैसे वो विरोध तो नहीं करता और ना ही आपका, लेकिन मैंने आपका एक ट्वीट पढ़ा था ट्विटर पे कि जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जो किया किसानों के लिए किया और जो कर रहा हूँ देश के लिए कर रहा हूँ। तो इसमें आपने सपोर्ट किया है उनका और आपने लिखा था बिल वापस लिया, देश बचा लिया, खुद हार गए, देश को जिता दिया, देश ना झुके इसलिए खुद झुके, राजनीति और राष्ट्रनीति का फर्क समझा दिया, मोदी ने राजधर्म निभा दिया। सर और इसके बाद आपने उनको हैशटैग थैंक यू मोदी भी लिखा है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आज भी बहुत से किसान अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं, फिर भी अभी एज ए जर्नलिस्ट क्या उनको अभी थैंक यू पीएम को कहना सही है? और मेरा एक और क्वेश्चन है सर कि डिबेट शोज में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनके कुछ आंकड़े दिखाए जाते हैं, तो इन आंकड़ों का रिसर्च करने में क्या क्या कठिनाइयां आती हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट हो या फिर लीडर्स? यार ये सबसे जो 2 सवाल आपने पूछे, जो मेरा पहला शो, पहले तो थैंक यू, आपने पूरी स्क्रिप्ट पूरी लिखी हुई थी, आपने मतलब आपने शो देखा था, थैंक यू सो मच। पहले तो देखो, मैंने आपको कही चीज, एज एन एम्पायर, एज एन एंकर, एंकर का रोल एम्पायर का है। अगर वो बल्लेबाज आउट है तो आउट देना पड़ेगा, बेशक गेंदबाज की मदद हो रही हो, हमको फर्क नहीं पड़ता। तो जब मुझे वो पीएम जब पीएम ने ये कहा कि एक कोट अनकोट, आपने मेरा कोट अनकोट पढ़ा, मैं उनका कोट अनकोट पढ़ता हूँ, प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों के लिए लाया, किसानों के लिए किया, देश के लिए वापस ले रहा हूं। कहीं पर भी किसान बिल को ये नहीं कहा प्राइम मिनिस्टर ने कि किसान बिल में कोई कमी थी। नंबर 1, उन्होंने जो वापस लिया, जो गवर्नमेंट का पक्ष था, वो ये था कि लेना पड़ रहा है क्योंकि कुछ इस तरह का एजिटेशन हो रहा है जो एंटी नेशनल है, नंबर 1। नंबर 2, कुछ इस तरह की चीजें हो रही हैं
कुछ लोग फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं इस एजिटेशन का अगेंस्ट इंडिया। ये कई रिपोर्ट्स होती हैं जो हमें नहीं पता होती, कई इस तरह की रिपोर्ट्स होती हैं। जिस तरह हमने खालिस्तान, तमाम चीजें हमने देखी, पंजाब सिंघू पर, वो कई चीजें आप लोगों ने भी देखी होंगी, जो जो चीजें हुई हैं, कई हिंसा हुई हैं, तो वो इसलिए लेना जरूरी था वरना माहौल खराब हो सकता था। तो मैंने उसमें एक लाइन ली, हमेशा आपको एक लेनी पड़ती है। मैं बता रहा हूँ ना, जब तक मैं नहीं तय करूंगा, मेरे से अगर कोई पूछेगा आपने कहा कि किसान बिल वापस लेना गलत था, सही था, आप में से अभी 2 लोगों ने कह दिया नहीं लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए था, तो आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू था, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था नहीं लेना चाहिए था, लेकिन लेकर सही किया। नहीं लेते तो और गलत होता, नहीं लेते तो 1 साल क्या ये 10 साल बैठे रहते, नहीं लेते तो फिर इस तरह की इंटरनेशनल चीजें होती, अगर नहीं लेते तो फिर खालिस्तान से लेकर तमाम एंटी टेरर एक्टिविटीज से लेकर टूल किट से लेकर तमाम चीजें होती। तो जब आपने शो देखा, आप एक नजरिया बना पाए, यही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। एज एन एंकर हमारे लिए होता है कि आप उस शो को देखने के बाद क्या कोई नजरिया बना पा रहे हैं। अगर बना पा रहे हैं तो ये हमारे लिए अचीवमेंट होती है। नजरिया बनाना बहुत जरूरी होता है, थॉट प्रोसेस होना चाहिए आपका, नंबर 1। नंबर 2, आपने बोला रिसर्च, रिसर्च बहुत जरूरी होती है यार, एक भी आंकड़ा गलत नहीं होना चाहिए स्क्रीन पर। उसके लिए हमारी रिसर्च टीम होती है, हम लोग उनसे मदद लेते हैं, हम लोग अपनी भी रिसर्च करते हैं, लेकिन एक रिसर्च टीम डेडिकेटेड होती है जो हमारे लिए फिगर्स इस तरह की निकालती है, और वो एक भी फिगर गलत नहीं जा सकती ऑन एयर। मतलब वो, मतलब ये ऐसी चीज है, जर्नलिज्म में नौकरी है, अगर कर रहे हैं, अगर एक भी गलत गई तो नौकरी गई। तो फैक्चुअली यू कैन नेवर बी रॉन्ग, नेवर। जैसे अभी मैम जो थी उन्होंने बताया ना कि आपका बेसिस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जो आप बोल रहे हैं उसके पीछे बुनियाद बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर है तो आप ताल ठोक के बोलिए, डंके की चोट पर बोलिए, लेकिन अगर नहीं है तो यू कैन नॉट स्पीक, क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। अगर एक भी फिगर मेरी ऑन एयर गलत गई तो खत्म है, फिर मेरा डिबेट शो कोई देखेगा नहीं। सर मुझे आपसे ये पूछना है कि जब आप डिबेट करवाते हैं और दोनों पक्ष के लोगों में काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट होने लग जाती है, तो तब आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, और हमें क्या टिप्स देना चाहेंगे कि हम इन फ्यूचर जब डिबेट कराएं तो हम कैसे हैंडल करें उस सिचुएशन को? पीछे हट जाओ यार, वो आपस में कर रहे हैं, जनता देख रही है। नहीं सर, बट आपका रोल फिर है। भी एक होता है ना कि आप काफी ज्यादा, मतलब सिचुएशन खराब हो गई तो आप क्या करते नहीं हैं देखो ना, उसमें? मैंने आपको एक चीज, इसको फॉर्मूला 3 साल के लिए बांध लीजिए। एज एन एंकर, एज ए जर्नलिस्ट, आप एम्पायर के रोल में हैं। गेंद जितनी मर्जी तेज पड़े, बल्लेबाज ना ही कवर शॉट से लेकर चौका छक्का मारे, उसमें आपका कोई रोल नहीं है ना। तो एज एन एंकर आप पीछे होते हैं। अब वो कौन गेंद डाल रहा है, कौन बल्लेबाजी क्या कर रहा है, आप पीछे हो जाइए, लेकिन दोनों से सवाल पूछना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपके पास काउंटर्स हमेशा तैयार रहने चाहिए। एक और चीज मैं बताऊंगा, 3 साल में आप लोग ध्यान रखिएगा, हमेशा आंसर को एक्सपेक्ट करके क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। मुझे पता है कि मैं कांग्रेस पार्टी से पूछूंगा या बीजेपी से पूछूंगा कि आपने बिल वापस क्यों लिया, तो बीजेपी का जवाब आएगा फॉर द कंट्री। तो मैं ये सवाल नहीं पूछूंगा आपने बिल वापस क्यों लिया, मैंने आंसर को ये पहले ही अंदाजा लगाया। तो बीजेपी आएगी तो वो यही बोलेगी भाई देश के लिए लेना पड़ा। तो मैं हमेशा काउंटर तैयार करके जाऊंगा कि ऐसे तो 370 भी वापस लेना पड़ जाएगा, फिर ऐसे तो फिर 370 का फैसला होगा, फिर राम मंदिर का फैसला होगा, ऐसे तो सारे फैसले वापस। तो आप हमेशा आंसर को आपको पता होना चाहिए वो क्या जवाब देगा, फिर आप सवाल तैयार करते हैं। और कोई? Good morning, sir. जी गुड My मॉर्निंग। name is Rishabh. Sir, there is a recent release, a movie which is about an anchor, which is Dhamaka. Sir, उसमें एक लाइन है, उसमें बोलते हैं कि एंकर एक एक्टर है। So do you have to say something on this line? एंकर एक एक्टर, अच्छा मैंने मूवी देखी नहीं, सॉरी यार। धमाका। सर उस लाइन का बेसिक मतलब ये है कि एंकर इज एन एक्टर, जो आपको चैनल बोलता है वो एंकर को करना पड़ता है। नहीं मतलब एंकर एक्टर तो चलो मैं मान लूंगा भाई, वो तो ठीक है। आपको इसमें एक शब्द होता है टू कैच योर आई बॉल्स, टू कैच द आई बॉल्स। आपने बोला आप ताल ठोक के देखते हैं, तो क्यों देखते हैं भाई? डिबेट्स तो 10 आती हैं, आप ताल ठोक के ही क्यों देखते हैं? और कभी भी ना एक्टिंग नहीं होती है, वो आपके अंदर से आता है। जैसे अभी यहाँ पर कितने लोगों ने बोला फार्म बिल वापस लेना गलत था, तो वो उनमें से कोई डिबेट करने जाएगा ना तो वो ताल ठोक के बोलेगा गलत था, गलत था, गलत था, गलत था, गलत था। तो एक्टिंग कर रहा है, वो अंदर से आता है यार। एक्टिंग वैक्टिंग तो कभी करी नहीं, मतलब एक्टिंग तो नहीं है, मतलब अंदर से ही होता है यार जो करते हैं।
व्हेन यू फील द सेम। वो मूवी मैंने देखी नहीं यार, सॉरी। नहीं, उसमें ये था अमन, अभी बहुत रिसेंटली अभी रिलीज हुई है कि मैं एंकर को कहा जाता है कि क्या ड्रामा करना है ऑन स्क्रीन, किस नहीं समय नहीं, सैड माहौल करना है, किस समय कुछ मेलोड्रामेटिक चीजें करनी है, इमोशनल अराउज करना है, तो इस तरह का वो फिल्म स्टोरी है ना सर, फिल्म है ना सर, मूवी है ना सर। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। माय जी नेम गुड इज मॉर्निंग। समाक्षी दत्ता। तो जैसे अभी डिबेट्स की बात चल रही थी और आपने बोला कि आप चाहते हो कि आप ऑडियंस के सामने दोनों पार्टीज का पॉइंट ऑफ व्यू रख दो, फॉर द मोशन वाली और अगेंस्ट द मोशन वाली, ताकि आप एंड में ये डिसाइड कर पाओ कि कौन सी सही थी। तो जी इसके बिल्कुल। लिए आपको पता होता है कि डिबेट होएगी तो आर्ग्यूमेंट होगा और शोर मचेगा। तो क्या आप ये टीआरपी के लिए करते हो? क्योंकि आप तो ऐसे ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हो और वो बहुत टीआरपी के शांति लिए, से होगी। टीआरपी के लिए कुछ नहीं होता है। टीआरपी ऑटोमेटिकली इसका पार्ट होती है। मतलब जब आप बार बार फिर से वही बात, ताल ठोक के क्यों देखते हैं लोग, या क्यों पसंद करते थे ताल ठोक के, या कोई और डिबेट शो हम क्यों पसंद करते हैं? वो मार धाड़ की वजह से करते हैं। इसकी वजह ये होता है कि उसमें लॉजिकल रीजनिंग कितनी है। आप किसी 1 घंटे की डिबेट को सुनने के बाद आपका दिमाग कितना और पावरफुल हो जाता है, आपके पास पॉइंट्स कितने सारे हो जाते हैं, आप कितने तैयार हो जाते हैं। मुझे लगता है इसलिए देखी जाती है डिबेट। अब वो डिबेट का पार्ट है यार, उसमें वो मार धाड़ हुई है, अगर वो कोई किसी का ऑडियो अप है किसी का ऑडियो डाउन है, वो सब पार्ट है। हम लोग यहाँ पर भी जब बात करते हैं, आप लोग जब फैमिली में 4 लोग बात करते हैं, किसी की आवाज तेज होती है किसी की धीरे होती है ना, मतलब ऐसा तो नहीं सब बैलेंस एकदम, जी आप बोलिए जी आप बोलिए, ऐसा तो नहीं होता ना। हम अपने मॉम डैड से भी बात करते हैं, फैमिली में भी बात करते हैं, तो हम लोगों की आवाज ऊपर नीचे होती है, तो वही डिबेट है। सर जैसा कि अभी सर ने कहा कि आपके तरीके से वो बिल वापस लेना सही था, बट और प्रोटेस्ट करना भी सही था, बट ऐसा बिल वापस लेके गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को आगे और भी कई बिल पास हो सकते हैं, उसके बाद लोग फिर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, इवन इससे स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वो देश के लिए सही होगा नहीं होगा। इससे लोगों के अंदर एक व्यू तो चला गया ना कि प्रोटेस्ट करके, इतना बड़ा प्रोटेस्ट करके कोई भी चीज हम अपने फेवर में ले सकते हैं। तो क्या वो आगे भी ऐसा करेंगे और फिर ये सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही, यही मेरा टेक था यार, यही मेरा टेक था। अगर मैंने जो बिल बोला है कि बिल वापस लिया, वो किसानों के भले में नहीं है, बिल वापस लेना देश के भले में था। और ये टेम्पलेट सेट हो जाएगा, जो आपने बोला है ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ये टेम्पलेट सेट हो जाता है कि फिर जो शाहीन बाग हो रहा था वो फिर से होना शुरू हो जाएगा, फिर हर कोई अपने इश्यूज को लेकर एक सड़क ब्लॉक कर देगा। दिस वुड बी अ न्यू टेम्पलेट, सो दिस हैज टू बी आस्क्ड टू द गवर्नमेंट। ये हमको सरकार से सवाल पूछने होते हैं। आप मान के चल रहे हैं कि चलिए जो आपने किया ठीक है, यू डिड इट फॉर द कंट्री, बट दिस कैन नॉट बी सेट एज एन टेम्पलेट। ये तो वो बन जाएगा कि भाई हर कोई आएगा, अब अन्ना आंदोलन हो गया था वहां पे बंद हो गया था, अब शाहीन बाग हो जाएगा, कल को शाहीन बाग वाले फिर बैठ जाएंगे वहां पर, फिर से आंदोलन शुरू हो जाएगा, फिर कहीं और जाके बैठ जाएंगे। तो ये तो एक नया तरीका बन जाएगा कि कानून संसद से नहीं सड़क पर बनेंगे। यही आप कहना चाह रहे हैं ना? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप ठीक कह रहे हैं। तो बिल वापस लेना किसानों के बल में नहीं है, इट इज फॉर द कंट्री, फॉर नेशनल सिक्योरिटी पर्पज में भी, बट नॉट फॉर द फार्मर्स सेक। तो बट ये चीज आप मान के चले, ये आपके दिमाग में है, तो जब आप डिबेट करेंगे, अब कहने को आप बायस्ड हैं, आप मान के चल रहे हैं, बट यस यू आर बायस्ड फॉर द कंट्री एंड यू हैव टू बी बायस्ड फॉर द कंट्री। हर खबर के 2 पहलू होते हैं, पक्ष या विपक्ष। आप उसके साथ कैसे खड़े होते हैं ये सिर्फ सोचकर तब तय किया जाता है कि दिस टॉपिक इज फॉर द कंट्री और अगेंस्ट द कंट्री, बस उसके आधार पर आप तय कर सकते हैं। जैसे अभी आपने बोला कि तो ऐसे तो फिर आके मैं भी सड़क जाम कर देता हूँ, मैं भी कहीं बैठ जाऊंगा। हम लोग 2 मिनट की गाड़ी रोकते हैं, हमारा 500,000 रुपये का चालान हो जाता है। वो लोग पिछले 1 साल से बैठे हुए हैं वहां पर। और आर्म ट्विस्टिंग है, ब्लैकमेलिंग है, ब्लैकमेलिंग सक्सेसफुल रही। और कोई सवाल? सर माय नेम इज ज्योति मिश्रा हाँ एंड जी मेरा जी। क्वेश्चन ये था कि कई बार पक्ष और विपक्ष दोनों ही तर्क अगर बहुत ज्यादा मजबूत हो और अगर इस पे कोई कंक्लूजन ना निकल पाए तो ऐसे सिचुएशन में मतलब क्या होता है? कंक्लूजन तो कोई भी, आप मुझे एक एग्जांपल दे दीजिए। मैं कह रहा हूं इम्पॉसिबल है कि किसी एक इशू पर आपकी राय ना हो, इम्पॉसिबल है। कोई भी इशू आप निकाल लीजिए, आपको लगेगा जैसे अभी जो जो मेरे साथ जुड़े उन्होंने कहा ना कि ये तो गलत है, फार्म बिल वापस लेना गलत है, 370 सही है वापस लेना,
एनआरसी बहुत जरूरी है। कोई भी इशू आप ले लीजिए, मुझे नहीं लगता है कि आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू अगर नहीं है, और अगर नहीं है तो इसका मतलब आपने पढ़ाई नहीं करी। मतलब पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत जरूरी होता है, और कंक्लूजन तो निकलता है। दोनों पक्षों का मजबूत पक्ष आना इसलिए जरूरी होता है, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि दोनों पक्षों का मजबूत पक्ष आना इसलिए जरूरी होता है कि इससे आपके दोनों रीजनिंग स्ट्रांग होती है, फॉर एंड अगेंस्ट। तभी तो आप डिबेट शो लगाएंगे ना, तभी तो आप डिबेट शो सुनेंगे। वन साइडेड डिबेट शो नेवर रन्स, कभी नहीं समझ में आएगा, कभी कोई देखेगा भी नहीं। मैं आके बोलता रहूँ वापस लिया, गलत किया, गलत किया, गलत किया, फायदा नहीं है। कोई आके बोलेगा सही किया, कोई आके बोलेगा गलत किया, तभी तो दोनों को आप सुन पाएंगे और आप तय कर पाएंगे क्या सही है क्या गलत है। सर, अगम कौर ने चैट में एक सवाल पूछा है कि अगर हाँ जी। किसान बिल वापस लेना गलत था तो लाने से पहले किसानों से बात क्यों नहीं की? किसान बिल वापस लेना गलत है तो जब लाए तो उससे पहले किसानों का ओपिनियन क्यों नहीं लिया गया? और अंश ने भी यही पूछा है, व्हाट इज योर व्यू ऑन एमएसपी? देखिए, एमएसपी को लेकर ये बहुत ही पॉलिटिकल डिबेट है। बहरहाल एमएसपी टच नहीं हो रही है इन तीनों बिलों से, ये बहुत कम लोगों को पता है। एमएसपी जहां है वहीं बनी हुई है। 3 बिलों का एमएसपी से कोई लेना देना नहीं है। एमएसपी जो पहले थी वो पहले की तरह है। इन 3 बिलों का एमएसपी से कोई लेना देना ही नहीं है। यही तो कह रहा हूं, मिसकम्युनिकेशन है, लोगों को पता ही नहीं है। और अगम का सवाल था कि किसानों का व्यू पॉइंट क्यों नहीं लिया गया या किसानों से बात क्यों नहीं की गई? अब इसमें पता है सबसे बड़ा एंगल क्या है? सबसे बड़ा एंगल ये है कि सरकार कहती है कि 86% किसान तो इसके फेवर में थे, 14% सड़कों पर थे। वो 86% सड़कों पे नहीं आए, बस उनकी वही गलती थी। अगर वो भी सड़कों पर आ जाते तो शायद बिल वापस ना होता। बात की गई थी, ऐसा नहीं है, ये गवर्नमेंट का पक्ष है, बात की गई थी। लेकिन जो सड़कों पर आए, क्या तमिलनाडु का किसान आया सड़कों पर? क्या दक्षिण का किसान आया सड़कों पर? क्या महाराष्ट्र के किसान आए सड़कों पर? क्या राजस्थान या मध्य प्रदेश के किसान आए सड़कों पर? ये तो यूपी पंजाब के थे। तो देश से यूपी पंजाब थोड़ी ना है। देश में तो फिर 28 राज्य हैं, सब कुछ है, सब कुछ। तो फिर 86% किसान इसके पक्ष में थे। 86%, सिर्फ 14%, ये गवर्नमेंट कहती है, 14% एजिटेशन था ये, और उनके चक्कर में वापस हुआ। तो किसानों से बात नहीं की गई थी, ये कहना इसलिए गलत होगा क्योंकि मेजोरिटी तो इसके पक्ष में थी, बट उनकी गलती थी, वो लोग सड़कों पर नहीं उतरे थे। सर, माय नेम इज हिमांशी। जी सर, मेरा हिमांशी। ऐसे ही एक सवाल था, जैसे धमाका मूवी में एक ये भी डायलॉग था कि हम न्यूज़ दिखाते नहीं है, हम बेचते हैं। अगर तुम हमारी टीआरपी ऊपर लाओगे तो हम तुम्हें प्रमोशन दे देंगे। तो क्या ये सच है कि न्यूज़ के लिए सिर्फ टीआरपी मैटर करती है? हाँ, सिर्फ टीआरपी नहीं, मतलब झूठ भी टीआरपी बोल also देंगे matter। वो? सर, क्योंकि मूवी है उसमें भाई, ऐसा हुआ था। फिल्म है ना, मूवी है। मूवी में तो बहुत कुछ होता है। लेकिन यूट्रस तभी मैंने पूछा ना कि अगर ऐसा ही है तो वो कुछ भी बोल देंगे अगर उनको टीआरपी बढ़ानी है तो। सुन लो, आंसर तो सुन लो बेटा। नहीं, ऐसा नहीं होता। टीआरपी इज ए पार्ट ऑफ मीडिया बिजनेस, लेकिन टीआरपी ही उसके लिए झूठ कोई नहीं। देखिए मैं बता रहा हूँ ना, मैंने अगर एक बार झूठ बोला, मेरी क्रेडिबिलिटी 0 है, मुझे देखना बंद कर देंगे। झूठ तो बोल ही नहीं सकते हैं। फैक्चुअली यू कैन नेवर बी रॉन्ग। आंकड़ों के लिहाज से आप कभी भी गलत नहीं हो सकते। झूठ तो आप बोल ही नहीं सकते ऑन एयर। बट टीआरपी इसका बाय प्रोडक्ट होता है। व्हेन यू say truth, when you do it with conviction, when you do it from your heart, when you do it on the basis of your facts, TRP automatically comes. ताल ठोक के या हम लोग कोई भी डिबेट शो करते हैं, झूठ तो नहीं बोला आज तक, लेकिन क्यों नंबर 1 नंबर 2 है, लोग देखते हैं बिना झूठ के भी। और वो टीआरपी उसका बाय प्रोडक्ट होती है। टीआरपी ड्रिवन कंटेंट नहीं होता, लेकिन कंटेंट ऐसा स्ट्रांग होना चाहिए। टीआरपी क्या है? टीआरपी ज्यादा लोग देखें, वो टीआरपी है। तो वो तो इस जब आप अच्छे से शो करते हैं, कमिटमेंट के साथ करते हैं, कन्विक्शन के साथ करते हैं, लोग ऑटोमेटिकली जुड़ते हैं। तो टीआरपी इज अ बाय प्रोडक्ट व्हेन यू परफॉर्म, व्हेन यू डू गुड फॉर द कंट्री, दैट्स इट। थैंक यू सर। आई थिंक हम यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं और जी, उसके जी। लिए आपको हमारे पास आना पड़ेगा सबसे 1-on-1 और ज्यादा टाइम निकाल के।
So बिल्कुल thank you so much for your time. Thank you very much. Now I invite Professor Shushmita Bala, Head DME Media School, to share her concluding remarks and deliver vote of thanks. Ma'am. Thank you, Manasvi. Good morning, everyone present here. Thank you, Mr. Aman Chopra. It was interesting and interactive session. मुझे लगता है कि स्टूडेंट को बड़ा मजा आया और उनके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस थे पूछने के लिए. ग्रेजुअली उन्होंने पूछना शुरू किया. स्टार्टिंग में थोड़ा कम था, लेकिन धीरे धीरे वो खुले और क्वेश्चंस पूछे. एक्चुअली डिबेट अपने आप में डिबेट है, क्योंकि हम जब डिबेट वर्ड यूज करते हैं तो उसमें इतने सारे क्वेश्चंस, इतनी सारी रीजनिंग, इतने तर्क वितर्क सब आ जाते हैं. जैसे आपने भी बोला कि हमें कम से कम 5 मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव, अपोजिशन सारे लोगों को मिला के कम से कम 5 व्यू पॉइंट्स हो जाते हैं, 6 व्यू पॉइंट्स हो जाते हैं. तो उन सारे व्यू पॉइंट्स को कवर करना, उनको सुनना और उसके बाद एंकर को उसको एनालाइज करना और लास्ट में अपने वर्ड से कंक्लूड करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट. तो स्टूडेंट्स ये सुन रहे हैं और एक्चुअली जब आप स्टूडेंट्स देखते हैं डिबेट या जब आपको ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी डिबेट, तो आपको समझ में आएगा कि जब आपके पास 5 लोग डिफरेंट व्यू पॉइंट के हैं तो आप उनको कैसे कंट्रोल करेंगे और कैसे उनको बीच में इंटरप्ट करेंगे और कैसे उनको टू द पॉइंट टॉपिक पर लेके आएंगे. तो ये बहुत डिफिकल्ट है और स्टूडियो में बैठ के विद इन द टाइम के अंदर उसको फिनिश करना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी डिबेट शुरू होती है तो कोई ज्यादा बोलना चाहता है, कोई उसमें उसको रोका जाता है, लेकिन आपको इक्वल टाइम उनको डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है. सो आपको सर ने बताया कि तर्क शक्ति आपकी डिबेट से बहुत स्ट्रांग होती है. तो तर्क शक्ति स्ट्रांग करने के लिए आपको क्या क्या करना है? आपको बहुत सारा हार्ड वर्क करना है, रिसर्च वर्क करना है और डिफरेंट पॉइंट्स के लोगों को से इंटरेक्ट करना है. तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं, क्योंकि डिबेट के लिए तैयार होने के लिए आपको बहुत मेंटल एक्सरसाइज करनी पड़ती है. ट्रैक पे रहना पड़ता है खुद भी, और जो लोग आपके स्टूडियो में आए हैं उनको भी ट्रैक पे रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग भटक जाते हैं, पॉइंट से अलग बातें करने लगते हैं. तो एंकर का काम ये भी है कि उनको ट्रैक पे लाए. तो इतने सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स ने पूछे और सबसे बड़ी बात जो आपने बोली लास्ट में कि कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है जिसमें सोसाइटी का भी फायदा हो, कंट्री का भी फायदा हो और आप सबका फायदा हो, क्योंकि हम इसको रैंडम नहीं ले सकते. डिबेट जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, डिबेट अपने आप डिबेट है और इतनी इंटरेस्टिंग वे में आपको अमन सर ने बताया. और जैसा मनस्वी ने कहा कि जैसे ही सब कुछ नॉर्मल होता है आपको इंस्टीट्यूट आना पड़ेगा और स्टूडेंट से सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस लेने होंगे और उनसे क्वेश्चंस लेके उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा. सो थैंक यू अमन चोपड़ा एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर. थैंक यू. Thank you, ma'am. I once again thank Mr. Aman Chopra for sharing his experiences with all of us today. It was a pleasure to host you, sir. I also thank management and leadership team of DME for supporting us in our endeavors. I thank students and parents for joining us. Our next session is with Mumbai's popular voice RJ Richa, is scheduled on Thursday, December 2. Now I'll take your leave and see you on Thursday. Thank you so much. Thank you so much. In DME, we believe in engagement and empowerment of students. And since the time this COVID-19 struck in 2020, we intensified this whole process. For the education sector, it was a big challenge. At DME, our small dynamic team decided to take this challenge head on. We organized different kind of programs, different webinars wherein the distinguished people from the industry and other walks of life, they are invited to interact with the students. We try to keep them engaged in taking out newsletter, writing stories, editing stories, and not only that, they make posters, they make cartoons, they write pieces for the newsletter. Mentoring Cell at DME is a very unique feature in the ecosystem of education. While the subject teachers forge the knowledge domain strongly, it is the mentors who reach out to students in difficult times. During pandemic, when our students faced loss of their loved ones, home isolation, and several other family issues, mentors ensured that students remain cheerful, lively,
and stay connected with us. We have ensured that our students are treated with compassion, warmth and gentle touch. And it has been our endeavor to treat all the academic activities of our students, which includes PSDA, internal assignment and various other curricular activities accordingly. Research Cell also pays huge emphasis on interdisciplinary nature of research. In order to promote this, the research centers of the Research Cell were also motivated to join with each other and conduct research activities for students, faculties within DME and outside DME. While the strong academics and great industry connect is building great lawyers, media persons and managers at DME, we at Mentoring Cell are enabling these future leaders to be compassionate, emotionally strong and resilient for any times to come. We empower the students. All the schools of DME, they have their students council. In DME Media School, this council is spark. They organize the program themselves, they take their own decisions and they mobilize the students for all the good cause. Art has the power to unite and connect during the times of crisis. Bringing people together, sharing, soothing and inspiring are powers of art, which have been made empathically obvious by the DME cultural societies during the COVID-19 pandemic. By taking different innovative approaches in organizing various virtual competitions and events in which the students of DME have taken part with great enthusiasm and proved that DMEians are unstoppable. Care with compassion is motto of DME. During Corona period, we were always with our students. Their well-being is primary for us. We take care of our students. We met the expectations of the students, of the parents and above all of the industry. The placements this year were better than those of the previous years. DME is committed to supporting its students in all possible ways.